what happens when the ship is going out at sea? When she is out of the range of coastal stations, there is no monitoring of the vessel. Of course, the ship is sending position reports, noon reports to the company. Company may also know about it, but otherwise authorities have got no control over this if it is normal process. So government is unaware of any vessels tracking, vessels in their area. You know, 9/11 attacks happened when terrorists hijacked airplane and they used the aeroplanes as a bombing device. You must have heard that twin trade towers centers were bombarded, like they were hit by the aircraft, and it all went down. This happened in 2000 or 2001. Looking at this, IMO said that if these are the kind of things that is happening, it can very well happen with the maritime industry also. The ships may also be hijacked and used for wrongful purposes. So, taking a lesson from here itself, or rather, proactive approach, they said we should secure the ships much more. We don't know in the international waters what is happening to the ship, whether it is being hijacked or it is being overpowered and things like that. So in 2002 itself, they sat together and came out with a regulation or amendment to the SOLAS chapter, wherein they included three kinds of thing in the overall procedure. The first one was access control to the ship. Who are the people going into the ship? They must be identified. They must be accompanied. There has to be proper access control in all the ship. Early days, anybody could walk in to the ship. कोई भी जहाज में चढ़ के आ जा सकता था. अब नहीं होता. So first thing that was done was access control by means of ISPS. When you have joined, you are already seeing ISPS, but it was not there initially. So they came out with this requirement that every ship will maintain a gangway watch. Anybody, any visitor coming in, they must be identified, they must be checked, they should be given an ID. उसमें भी MARSEC level है up 1, 2, 3 that you are aware of. So first of all, they said unauthorized entry should be restricted. तो जहाज गैंगवे वॉच रखे, पोर्ट वॉच करे, अपना जैसे करते हैं वैसे करे. Second thing that was floated was LRIT, long range identification and tracking system. डिटेल में तो बात करेंगे, but what was this? LRIT, by means of LRIT, all ships will be tracked by their flag administration at all times, even when the ship is out at sea. Long range identification, who is this, and tracking का किधर को जा रहा है. So IMO में नई जो requirement आई LRIT की, by means of this, every ship is now getting monitored by their flag administration. मान लीजिए इंडिया का केस ले लें, for example, the flag administration is DG Shipping. So DG Shipping will monitor all the ships flying Indian flag. मान लीजिए इंडियन फ्लैग 300 जहाज, 300 ships registered in India, for example. All these 300 ships will be tracked by DG Shipping, no matter where they are. If these 300 ships, let us say out of 300,
100 are in the coastal area. DG Shipping knows which ship is where in the coastal area. The other 200 ships are foreign going all throughout the world. कोई पैसिफिक में है, कोई अटलांटिक में है, कोई यूरोप में है, कोई साउथ अमेरिका में है, कोई मिड सी में है. Every time, every moment, the flag administration will know where my 300 ships are. So continuous tracking. Flag administration will track all the ships on a continuous basis. कैसे होगा वो देखेंगे. Remember that it is to ensure security of the vessel. It is not about safety of navigation. कि collision avoidance और इसका idea नहीं है. Idea behind this is to secure the ship. बाहर के threat से, pirates के, terrorist के threat से जहाजों को बचाना. The third thing which came was a dedicated alert system when there is piracy attack or terrorist attack on the vessel. You know this by the name of SSAS, Ship Security Alert System. It's a kind of distress message or distress alerting, wherein the ship is alerting the flag administration that we have been attacked. So जहाज में वैसे तो GMDSS के सारे इक्विपमेंट होते हैं. There are multiple methods of alerting ashore. When the ship is in trouble, they can alert other stations in the vicinity or the shore stations. But this is SSAS is an additional distress alerting for one single purpose. Only one kind of distress, that is attack, either piracy attack, terrorist attack, or whatever kind. When the security of the ship is threatened, SSAS can be alerted, can be activated. This alert directly goes to the flag administration. The flag administration gets notified immediately by a single thing. उसमें और कुछ नहीं करना होता, बस एक बटन दबाना है. एकदम हॉट बटन है, वो दबाया, लंबा प्रेस रखा, 4-5 सेकंड का, अलर्ट चली गई. Whatever action is to be taken by the flag administration, they will take. So these three things came out of that resolution. ISPS we are not going to talk about here. SSAS also you'll be talking a little bit more about it. Actually very simple device, but you'll be talking more about it in GMDSS. वहाँ पे पढ़ाया जाता है इसको, because that's related to safety and distress. Also because it is a radio communication system. Here we are talking about LRI. Let us say if in India, about 500 miles from the coast, there is a vessel going. It would be nice if I can keep watch on that कि वो कौन जहाज किधर को जा रहा है, क्या कर रहा है. So IMO में जितने member states हैं, contracting governments, they agreed that we will monitor our ships and we will exchange data with each other. अगर इंडियन जहाज यूएसए चला गया और यूएसए में है, तो यूएसए से इंडियन जहाज इज सेंडिंग द रिपोर्ट टू द फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन कि मैं यूएसए में हूं. तो यूएसए को कैसे फायदा होगा इस जहाज के वेयर अबाउट्स का? तो फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज डीजी शिपिंग, विल शेयर दिस डेटा विथ यूएस गवर्नमेंट सो दैट यूएस गवर्नमेंट आल्सो नोज कि उनके एरिया में ये इंडियन जहाज. If there is a Japanese ship in our port, Indian waters, the Japanese ship is sending a report to Japan. उनके अपने अथॉरिटीज को भेज रहा है कि मैं इंडिया में हूं. लेकिन इंडिया को क्या फायदा होगा?
So Indian government can obtain that data from Japan. That means the whole world is interconnected. सबकी डेटा अपने अपने पास रहती है, लेकिन जो मुझको चाहिए मेरे एरिया में कौन कौन है तो सारे लोग मुझको देंगे. If some other country, then I will also be providing. So on a need to know basis, सब मिलके सब अपने अपने एरिया को सिक्योर करते. इंडियन वाटर्स में जितने जहाज हों, चाहे वो जापानीज हो, यूएस का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जापान का हो, होंडुरास हो, बेलीज हो, कोई भी पनामा हो, कोई भी फ्लैग का वेसल्स अगर मेरे एरिया में है, आई विल बी हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द शिप्स, क्योंकि मैं अपने के ऊपर तो खुद ही नजर रखता हूँ. जो बाहर के जो जहाज मेरे एरिया में, मैं इसके इंफॉर्मेशन उन कंट्रीज के डेटाबेस से उठाता हूँ. जो भी मेरे एरिया में आएगा तो मुझको अथॉरिटी है कि मुझको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी. ये अग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट के बीच. सो हाउ मच डिस्टेंस? About 1,000 miles from the coast. Any ship which is passing by within 1,000 miles of my coast, I will be able to monitor those vessels. Not directly, because they are not sending report directly to me, but they are sending report to their country, and I am able to obtain from that country. वहां जहां पे भी डेटा जाती है वहां से मैं उठा के लेके आता हूं. So that is all about LRIT. The ships are getting monitored by the flag administration. Remember that LRIT is not an equipment. It is a system of position reporting by which the ships are always telling their contracting governments, we are here now, we are here now, now here, now here. So at regular intervals, they keep on transmitting message to the flag administration. Regularly means at least once in 6 hours. Every day 4 reports. Minimum. उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम. Every 6 hours means 6 चौके 24, 24. So in 24 hours, there will be 4 reports at least. So the data will be updated every 6 hours. It can become less. 4-4 घंटे में भी हो सकता है, 2-2 घंटे में भी हो सकता है, 1-1 घंटे में भी ट्रांसमिट कर सकते. That is as per requirement. So this is a system of position reporting by which the ship will transmit its position report to the flag administration automatically without human intervention. कोई हाथ नहीं लगाना. System will transmit the position report automatically to their flag administration at fixed intervals, not exceeding 6 hours. 6 घंटे से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं. So that flag administration always knows where is the ship now. अभी यहाँ थी, 6 घंटे बाद यहाँ पहुंच गई, 6 घंटे बाद यहाँ. So that is what is happening. So talking about the purpose, we have already understood that the main purpose of this LRIT is ensuring maritime security, that the ships which are moving about throughout the world, they are safe, they are secured, that they are not threatened by pirates or terrorists. Threat तो होएगा, but to have a control over that, कि अगर हुआ ऐसा तो क्या करना है. तो उसमें फर्स्ट जो करना है वो तो बाद की चीज है, बट पहला इंश्योर ये कि एक्सेस कंट्रोल, जहाज में अनऑथराइज्ड एंट्री ना हो. सेकंड थिंग, कीप रिपोर्टिंग योर पोजीशन. अगर जहाज इधर जा रही थी अब इधर जाने लगी, ऐसा क्यों हुआ भाई, ये दूसरे ट्रैक पे क्यों जा रहा, जाना था उधर, जा रहा उधर, कान खड़े हो सकते. So this is the main objective, or rather purpose, is to monitor the vessel whenever the ship is out at sea, and thereby
improve maritime security. That is the first purpose. Then the second purpose that it may also solve is again reducing maritime pollution. Why is that? Because if you are being watched कि आप यहाँ हो फिर यहाँ हो फिर यहाँ, उस रास्ते में आप अपने रास्ते में you will try not to leave any kind of trails. So just by observation, when you know that you are being watched, तो सीधा चलने में ही भलाई है, नहीं तो फंसेंगे बाद में. So it promotes that also, maritime pollution control. The third thing that it is helpful in is again search and rescue. If there is a distress situation, उसके आसपास में कौन से जहाज हैं मुझको पता होगा. मेरे एरिया की चीज है, let us say Indian waters only. So there is a ship in distress. From a search and rescue agency point of view, I can see यहाँ पे डिस्ट्रेस है तो उसके आसपास में कौन कौन से जहाज हैं, तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि आप बढ़िए, हम आ रहे हैं पीछे से. ठीक है. So the three purposes: maritime security, maritime pollution control, and finally search and rescue. So all these three places this data will be received. Sir, Very there is a categorically. question, sir. Sir, LRIT also sends this. LRIT sends all our information to, sir, websites also, right? Like from internet, we can also locate what is our ship's position. So that data is from LRIT or from AIS? From AIS. LRIT is a point-to-point communication. जहाज भेजती है, फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव करता है, बीच में और कोई इन्वॉल्व नहीं. Okay, sir. Okay. Since owners का जहाज है ये, तो उसकी एक कॉपी ओनर्स को भेज सकते हैं, लेकिन इट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. जहाज यहाँ सिर्फ एक सिंगल मैसेज जाती है सेलेक्टेड स्टेशन को, दैट स्टेशन इज फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन. अगर इंडियन जहाज है तो डीजी शिपिंग को, अगर ऑस्ट्रेलियन जहाज है तो एम्सा को. सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. इट इज नॉट ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिट कर दिया, तुम्हारे पास है तुम ले लो, तुम्हारे पास है तुम ले लो. नो, it is point to point communication, close ended. It is not open communication. Understood? सर ये सिर्फ पोजीशन ही बताएगा? वो आगे आ रहे हैं ना, वो आगे आ रहे हैं क्या क्या ट्रांसमिशन होती है. So we'll go on the board to understand the process. जो हमने बात करी कि कन्वेंशन में ये सब सारी चीजें रखी गई, लेकिन ये कैसे होगा, कैसे ये सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी, उसको वर्कआउट करने में टाइम लगा, 2-3 साल का टाइम लगा. और फाइनली 2006 में implementation start हुई. They came out with IMO requirement. This is the performance standard requirement for LRIT. So 2006 onwards, it started getting implemented. In 2 years, it was implemented from 2008. So what is an LRIT system? That we have understood. The ships are supposed to be reporting their position to the flag administration at regular intervals not exceeding 6 hours. The LRIT itself is independent of the equipment. LRIT is not an equipment. LRIT is a requirement of position reporting. जहाज बताता चले कि कहाँ अभी हम हैं, अब हैं, अब हैं. Any device which can do this is an LRIT device. अगर कोई भी डिवाइस है आपके पास, let us say your computer, your mobile phone itself, अगर एक जहाज में मोबाइल फोन रखा हुआ है और उससे रिपोर्टिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली, हर 6 घंटे में मेरा मोबाइल पोजीशन ट्रांसमिट कर देता है फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन को, then my mobile is LRIT device. But in most cases, the SATC, which is part of the GMDSS equipment, SATC
has got this feature of automatic position report. So most of the time, one of the SATC, which is the GMDSS equipment, is also used for LRIT transmission. डिस्ट्रेस अलर्ट आएगी तब ना आएगी जब आएगी. अभी I can use this SATC to transmit the position report. So जो आपने डब्बे पे देखा होगा स्टिकर लगा हुआ है LRIT, उस डब्बे पे जो लिखा था LRIT, that is not an LRIT equipment, it is just the SATC which is configured to transmit position at regular intervals. Most of the time. But having said that, any other device can be used for this purpose. Any other device. But it should also fulfill that requirement. Automatically, without any human intervention, the given parameters of position reports. So when IMO came out with the performance standard requirement, it turned out to be an elaborate system. लंबी चौड़ी चीज होनी थी उसमें. So we will see the components of these, of the LRIT system. What are the components of LRIT system? जैसे EIS में देखा, जैसे बनवास में देखा, VDR में देखा, यहाँ भी देखेंगे कि in the infrastructure of the whole thing, LRIT, how the data is starting from the ship and finally reaching the flag administration. So we'll go on the board to discuss about this, and we will see what happens, after which stage what happens, and how this data is finally landing at the flag administration, and what happens after that. Let us go to the board. Ship. On the ship there is LRIT equipment, whatever equipment. It is supposed to be transmitting position report, 4 PRs, or ulta likhte hain, PR into 4 reports daily. This PR is consisting of ship's ID, the position, and date time. Position without date time is invalid. आपने कह दिया इस लैटिट्यूड उस लॉन्गिट्यूड पे, कब भाई? अभी कि पिछले महीने कि साल भर पहले? So in position report only these 3 items are transmitted. But the ship is in mid-sea, middle of the ocean. तो यहां से जो ट्रांसमिशन होगी वो शोर को कैसे पहुंचेगी? What kind of communication system should be there for LRIT to report from all over the world, global coverage के साथ, जहां पे भी हो दुनिया में मैं वहां से flag administration को भेज सकूं? So what kind of communication system do you think will be required? Satellite. Very good, satellite communication. So when the equipment is transmitted, it is going to the satellite. फिर satellite communication में we also know that there is something called land earth station. Then हो सकता है कि उसके बाद repeaters लगे हों, लैंडलाइन नेटवर्क हो सकता है फाइबर हो, और तब यहाँ सब्सक्राइबर के पास पहुंचे. सो जो रिपोर्ट जाती है उसमें सैटेलाइट भी है, एलईएस भी है, लैंडलाइन भी है, फाइबर ऑप्टिक्स भी है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, एंड आफ्टर ऑल दिस द data which is transmitted is received by the subscriber. Subscriber मतलब end user. So everything put together, all this put together, जो बीच में आता है, transmitting station and receiving station के बीच में जो आता है,
इसको हम नाम देते हैं CSP, Communication Service Provider. So the ship is transmitting this data through the CSP to the subscriber. CSP में क्या क्या सारे कुछ आ गए, सैटेलाइट भी आ गया, लैंड अर्थ स्टेशन भी आ गया, लैंडलाइन नेटवर्क भी आ गया, वगैरह वगैरह. But then when it is going to the subscriber, who is the subscriber? किसको डेटा जा रही है ये? Flag state. Flag state. But it is not going to the flag state directly. This goes to an entity which is shore-based entity, of course, but that is known as ASP, Application Service Provider. जो शिप डेटा भेज रही है, that is going to the ASP via CSP. CSP का क्या काम हुआ यहाँ पे? Transfers the data to ASP in a secured manner. जैसे आप जहाज से बात करते हैं, घर पे बात करते हैं, तो बीच में सारी चीजें आती हैं. तो इसका काम है कि डेटा ASP को पहुंचा दे तरीके से, जो भेजा वो वहां पे पहुंचा दे. बट ये ASP है कौन? दिस इज एन एंटिटी अपॉइंटेड बाय द फ्लैग स्टेट. फ्लैग स्टेट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई हमारे जहाज हैं, वो ट्रांसमिट करेंगे पोजीशन, आप उसको कलेक्ट करना, मैनेज करना. तो ASP का काम है कि वो सारे जहाजों के डेटा को कलेक्ट करता रहता है, बट कलेक्ट करने के बाद वो आगे फ्लैग स्टेट को भेज देता है. फ्लैग स्टेट के पास में एक डेटा सेंटर. फ्लैग स्टेट के पास में डेटा सेंटर है, एक डेटाबेस है बेसिकली. होएगा कमरा, होएगा कोई कमरे का कोना, होगा कोई कंप्यूटर लगे होंगे, बड़ी सारी मोटी हार्ड ड्राइव लगी होगी, सर्वर लगा होगा. ASP उस टर्मिनल को भेज देता है डेटा. ये डेटा सेंटर के पास चली जाती है. एक्चुअली दिस डेटा सेंटर इज द फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन. अब पहुंचा है फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन के पास. But still the question remains, who is this ASP? As we said, ASP is an entity appointed by the flag administration. TG Shipping ने किसी को काम दिया कि भाई ये आपका काम रहेगा, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देंगे, but you have to do this. What? Collect the information from the ship and pass it on to me. Meanwhile, थोड़ा सा add करते हैं डेटा. ASP will add some more data to it. जो 3 चीजों का पोजीशन रिपोर्ट था, उसमें it add some more data. Ship name, maybe call sign, IMO number. मेरे ख्याल से MMSI होता है या नहीं मालूम नहीं, but let us say MMSI. Then it is also adding its own ID. अपनी ID इसमें डाल देता है ताकि बाद में पता चल सके कि ये रिपोर्ट किसके थ्रू आई है, तो इसके थ्रू आई है. Then it is also adding the data center ID, डेटा सेंटर का DC, इसका भी ID कि मैंने इसको भेजा तो किसको भेजा, तो एक रिपोर्ट के देख के पता चल जाएगा कि किस जहाज ने भेजा, उसकी क्या डिटेल्स थी, किसके थ्रू भेजा, और फाइनली किसको भेजा. Then various timestamps.
This various timestamps is what? It was transmitted, it was received here at so and so timestamp. It was all done and transferred, sent to data center. What time? Timestamp. So multiple timestamps are there so that once we see this report, we can know all about the report. कहां से चली, कब चली, कितने बजे चली, कहां पहुंची, किसको पहुंची, कितने बजे पहुंची, उसकी पूरी ऑडिटिंग कर सकते हैं. So this is the responsibility of the ASP. जब इन्होंने इनको काम दिया कि आपको ये करना है, तो क्या काम करना है? ये डेटा रिसीव करी, उस डेटा के साथ और इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया, रिपोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, बड़ा बना दिया. बट सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ ये मॉनिटरिंग के समय सिर्फ ऐड नहीं करते डेटा, दे हैव गॉट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. नाउ व्हाट इज दैट? Number one, this ASP, people will come on board to configure the equipment. जहाज पहले अभी शुरू हुई, मान लीजिए अभी रजिस्ट्रेशन हुई जहाज की, LRIT नहीं है, मे भी इक्विपमेंट खरीद लिया उन्होंने, लेकिन डेटा अभी नहीं भेज रहे, तो ASP के बंदे आएंगे आपके जहाज पे. People from the ASP will come on board and do setting of the device. जो आपके पास जहाज में इक्विपमेंट आया है LRIT के लिए या GMDSS के लिए जो है, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे. That is ASP. कौन है? हाँ जी, ASP कौन है सर इंडिया में? टाटा कम्युनिकेशंस. ओके सर. आगे बात में निकल आती टाटा कम्युनिकेशंस, मैं बोलता ही, बट आपने पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं. सो टाटा कम्युनिकेशंस के बंदे आपके जहाज पे आएंगे, वो आपके सिस्टम को सेट करेंगे, किसको भेजना है, कितने देर में भेजना है. आफ्टर डूइंग ऑल कॉन्फ़िगरेशन, they will do the testing of the system कि जा रहा है कि नहीं रेगुलर इंटरवल पे, डेटा सेंटर को जा रहा है या नहीं. उसके साथ इनकी एक्सेस होती है आपके जहाज पे, ये आपके जहाज के LRIT को एक्सेस कर सकते हैं, पोलिंग भी कर सकते हैं. पोलिंग मोड पता हो गया अब आपको कि पोलिंग मोड में क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग इन पोलिंग मोड? सर क्वेश्चन पूछते हैं. An interrogation message and response of that. That means ASP can obtain the LRIT position anytime. यहाँ से पोलिंग कमांड भेजेंगे इसको और LRIT जवाब भेजेगा. तो ये 6-6 घंटे में तो होती है, लेकिन ये चाहे तो 1-1 घंटे में पूछता रह सकता है कि अब कहाँ हो भाई, अब कहाँ हो, अब कहाँ हो. So they can do the polling and it will send a question, the ship will send an answer back. सर अगर ASP बोले, Go ahead. सर अगर ASP बोले कि हमें 6 घंटे में नहीं, एवरी 2 आवर्स या 3 आवर्स चाहिए, तो वो ऐसी कमांड भी भेज सकते हैं जिससे हर 2-2, 3-3 घंटे में अपने आप ही जाता रहेगा कि उनको हर बार मैसेज भेजना पड़ेगा, पोलिंग कमांड भेजनी Very पड़ेगी? much so. They can just change the 6 hour. जो 4 रिपोर्ट है यहाँ पे 32 लिख देंगे, मतलब they will set the time for 2 hours. तो 48 रिपोर्ट जाएंगी, सॉरी 12 रिपोर्ट जाएंगी, हर 2-2 घंटे नहीं, 24-48, 48 रिपोर्ट्स हो जाएंगी. तो they can send, reconfigure this, they can reset your device, वहीं से सारा रिसेट भी कर सकते हैं, टाइम भी चेंज कर सकते हैं कि कितने कितने इंटरवल पे करना है. उसके बीच में अगर जरूरत पड़े तो पोलिंग करके अभी करंट का पोजीशन भी ले सकते हैं. लेकिन ये सब सारी चीजें ये अपने मन से नहीं कर सकते. ये टाटा कम्युनिकेशन है, बट ये एक्चुअली डेटा किसको जानी है? हु इज द अथॉरिटी हियर? शिपिंग. डाटा सेंटर. तो ASP ये सब काम तभी करेगा जब फ्लैग स्टेट कहेगी उसको कि वो जहाज कहाँ है, जरा पता करो, तो ये पता करके बताएं. या
फ्लैग स्टेट बोलेगी कि अच्छा ये शिप HRA से पार कर रहा है, 6 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा, उसको 1-1 घंटे में कर दो जरा। तो इनके कहे पे ये यहाँ पे कमांड भेजेंगे और 1-1 घंटे में कर देंगे। 1-1 घंटे में मतलब 24 रिपोर्ट हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन टेस्टिंग। ये सारी टेस्टिंग होती है। पैसे आपको लगेंगे, पैसे ओनर को लगेंगे, लेकिन आएंगे ये लोग इनके कहने पे आएंगे। आफ्टर दैट दे विल गिव यू सर्टिफिकेट। They will give you a certificate that you are now LRIT compliant. So उसको बोलते हैं कन्फर्मेंस टेस्ट रिपोर्ट। आपके जहाज पे LRIT के लिए एक सर्टिफिकेट होगी कि हाँ आपका जहाज LRIT फिटेड है और काम कर रहा है। वो सर्टिफिकेट अगर इंडियन वेसल है तो उसमें किसका नाम होगा? Who is issuing that? टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन के लेटर हेड पे वो सर्टिफिकेट होगी। नाउ थिंग्स आर इन ऑपरेशन, सब काम कर रहा है। जब सब काम कर रहा है मतलब क्या कि रिक्वायर्ड इंटरवल पे डेटा जा रही है। अब उसमें मॉनिटरिंग भी ये करता रहता है। इट विल कीप ऑन चेकिंग कि सारे जहाज भेज रहे हैं या नहीं। अगर कोई जहाज नहीं भेज रहा तो सिस्टम रीसेट करने की कोशिश करेंगे, पोलिंग करेंगे, कुछ पता करने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने ये सब कर लिया, बहुत अच्छा, फिर से शुरू हो गया तो ठीक। अगर नहीं जवाब आ रही तो दे विल रिपोर्ट इट टू द flag administration that ship so and so is not transmitting data. So these are other responsibilities of the AIS. Ships LRIT configuration, testing of the system, certification, and then monitoring all the time. सर एक क्वेश्चन था जी सर, अगर ASP चेंज हो जाता है बाई चांस, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उसको सिस्टम को दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी? नहीं है ना, सिस्टम रीसेट कर देगा। Remotely it can be done. They don't have to come on board. फ्लोर पे बैठे बैठे अपने ऑफिस से ही नेटवर्क से इसको ठीक कर देंगे, रीसेट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ सर बोलिए। ASP क्या डेजिग्नेटेड एक ही फ्लैग स्टेट के साथ टाई अप रखता है कि वो डिफरेंट फ्लैग स्टेट्स के साथ भी एक ही ASP काम, जैसे टाटा कम्युनिकेशन है वो अलग अलग फ्लैग स्टेट्स की शिप्स को भी हैंडल करता है कि वो सिंपल सिर्फ एक ही फ्लैग स्टेट को करता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। ये फ्लैग स्टेट इज द डेटा सेंटर, करेक्ट? ये डेटा Yes, पहुंच sir. गई फ्लैग स्टेट और इन्होंने किसको अपॉइंट किया है यहाँ इंडिया में? फॉर एग्जाम्पल टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशन। ऐसा कोई कंट्री हो सकता है जो अभी हमने डीसी देखा, दैट वाज बेसिकली डीजी शिपिंग फॉर अस, करेक्ट? ये जो डेटा सेंटर थी वो डीजी शिपिंग के पास में थी, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पास अपना डेटा सेंटर नहीं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो भी उनके पास एसपी तो होगा, लेकिन ये एसपी बांग्लादेश ने कहा कि भाई आप इंडिया को भेजो। तो डेटा जो अवेलेबल है हमारे पास वो इंडियन वेसल का तो है ही, साथ में बांग्लादेश वेसल का भी डिटेल्स होगा हमारे पास। तो ऐसे सिचुएशन बन सकती है। एसपी तो हर कंट्री के साथ होगा, लेकिन डेटा सेंटर हो सकता है हर कंट्री के साथ नहीं हो। अभी आगे आएंगे आप लोग। गुड क्वेश्चन, लेकिन ये आगे आने वाला था कि कैसे डेटा सेंटर्स वगैरह होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर, विल कम स्टेप बाय स्टेप।
So every country will have an authority. भाई अपने फ्लैग स्टेट को संभालना है तो उसको तो अपना ही देखना होगा ना. तो ASP अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग होंगे, लेकिन डेटा सेंटर अलग अलग कंट्रीज के एक ही हो सकते. फॉर एग्जाम्पल, अब जब आ ही गए तो बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन. व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोपियन यूनियन? यस. सर वो यूरोपियन कंट्रीज की यूनियन है जिसमें वो एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. वेरी गुड. तो इसमें जर्मनी भी होगा, फ्रांस भी होगा, इसमें स्वीडन भी होगा, इसमें नॉर्वे भी होगा, वगैरह वगैरह. अब ये सब की अपनी एएसपी तो है, सबकी अपनी एएसपी तो है, बट द डेटा सेंटर इज वन. यूरोपियन यूनियन का डेटा सेंटर इज वन. ऑल दिस फ्लैग वेसल्स आर सेंडिंग टू द सेम डेटा सेंटर. Understood what we are trying to say? Yes, sir. यूरोपियन यूनियन का डेटा सेंटर एक है, बट बहुत सारे कंट्रीज हैं जो सब उसी को भेजते हैं. लेकिन जर्मनी का अपना एएसपी होगा, फ्रांस का अपना एएसपी होगा, क्योंकि यही तो आगे भेजेगा. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? Yes, sir, understood. ओके. सो यहां से डेटा सेंटर पे पहुंच गए. Now all this data is received at the data center. मान लीजिए यहाँ पे 200 जहाज हैं, इंडियन जहाज फॉर एग्जांपल. तो 4 रिपोर्ट अगर डेली जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 800 रिपोर्ट इज जनरेटेड. नहीं, डेली 800 रिपोर्ट, 800 reports are being generated daily. So all that 800 reports per day are being collected here. डेटा सेंटर पहुंच गए, डब्बे में पहुंच गया, वो कंप्यूटर रखा है, उसमें सारा डेटा है, कौन सी जहाज कहाँ है उसका डेटा है उस कंप्यूटर में. तो इसका क्या करें? अचार तो लगाना नहीं है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एलआरआईटी? Maritime security. तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी शुड ऑब्टेन दिस डेटा. Yes, sir. सो उसके लिए इस डेटा सेंटर के रिपोर्ट्स को, देयर आर ऑथोराइज्ड यूजर्स. इस डेटा को ऑथोराइज्ड यूजर्स यूज कर सकते हैं. डेटा सेंटर का काम है कि जो सारे ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं उनको ये डेटा अवेलेबल कराए. सो हु आर द ऑथोराइज्ड यूजर्स? सबसे पहले तो फ्लैग स्टेट ही है. फ्लैग स्टेट तो इस डेटा को एक्सेस कर ही सकता है, डिजी शिपिंग. उसके अलावे देयर आर पोर्ट स्टेट्स. They can also obtain this data. Port states means what? Each individual ports. Chennai, Bombay, Kochi, Rampur, Haldia, etc., etc. The ships which are going to come in their area, their port they are calling, उन सब vessels की details यहाँ से उठा सकता है. Then coming more to the security agencies, the coastal state. Who is responsible for coastal security in India? The Indian Navy. Coast Guards. Coast Guard and Navy put together. So all those agencies can also obtain this data कि कौन सी जहाज कहाँ है. They will need this in order to execute their services in a efficient manner. Then finally, this data when available can of course be used by search and rescue agencies, correct?
So these are the 4 authorized users. Can you see any private party here, or these are all national authorized entities? Any private party here, or everything is national? National. Very good. So this data, LRIT data, is all government use के लिए. The government owns this data and only government agencies use this. These are the authorized users. ये डेटा सेंटर में जो डेटा आई है, ये सारे लोग अपने नीड के हिसाब से यहां से डेटा उठा सकते हैं. फ्लैग स्टेट सारे के सारे डेटा उठा सकता है, कुछ भी देख सकता है. पोर्ट स्टेट्स कैन ऑब्टेन द डेटा फॉर दो शिप्स विच आर गोइंग टू कॉल देयर पोर्ट अपने नीड के हिसाब से. कोस्टल स्टेट, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, they can obtain data for anywhere in this area. जितने दूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने एरिया को मॉनिटर करना है, उन पूरे एरिया के कोई भी जहाज हो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यहाँ पे, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, तो सभी के इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है कोस्टल स्टेट, क्योंकि पूरे टेरिटोरियल वाटर्स का एरिया हैज टू बी सिक्योर्ड बाय इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड पुट टुगेदर. पोर्ट स्टेट्स अपने अपने जगह के, अपने अपने एरिया के. Then also the SAR agency, again in India, Indian Navy is given this responsibility of providing search and rescue in the ocean regions. So they can also obtain information for the service area that they are going to provide. अगर सर्च एंड रेस्क्यू का इतना एरिया डिजिग्नेटेड है, तो इस एरिया में जहाज जब भी होगी तो they can also obtain that data. अभी तक की सिचुएशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. All right. So, सर there is one question sir. बोलिए. हाँ सर, ये इसकी जो कॉपी होती है हमारी, वो सर फ्लैग स्टेट को जाती है सर, और ये सारी एजेंसीज जो होती हैं डायरेक्टली पिकअप करती हैं फ्लैग स्टेट से, कि उनको भी एक कॉपी जाती है सर? ना ना ना, सारा डेटा यहाँ पे है, जिसको जितने की जरूरत उतने को यहीं से दिया जाता है. इट इज द डेटा सेंटर्स जॉब टू डिसिमिनेट द इंफॉर्मेशन. डिसिमिनेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन टू द ऑथोराइज्ड एजेंसी एज पर देयर नीड. यहाँ तो सारा है, लेकिन इसको पोर्ट स्टेट को सिर्फ, इस बॉम्बे को सिर्फ अपने एरिया के लिए मिलती है, यहीं से उठाता है ये, लेकिन उसमें से कुछ एरिया का मिलता है. इस एरिया के लिए जो डेटा है वो इसको मिलेगा. ये अगर पोर्ट है कोची फॉर एग्जांपल, तो वो वहीं से उठाएगा, ये इनको देगा, बट अपने एरिया के लिए देगा. अगर सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है तो पूरे एरिया के लिए यहां से उठाएगा ये. सो डेटा सेंटर इज द स्टोरेज हाउस, और सब वहीं से जाके डेटा उठाते हैं, डायरेक्ट कॉपी नहीं जाती है किसी को. यहाँ हमने देखा ना, जहाज से चली तो कहाँ गई? सीएसपी. सीएसपी के थ्रू कहाँ पहुंचा? एएसपी. एएसपी से कहाँ पहुंचा? डाटा सेंटर. पहुंचा? इनको तो नहीं ना गया, इनको तो नहीं मैंने बताया. So it is going there only. These authorities will pick it up from here. डेटा सेंटर का ही काम है कि जिसको जितने की जरूरत है उतना प्रोवाइड करे. अंडरस्टूड? यस सर. अंडरस्टूड. ओके. तो अगर ये डायग्राम आपने थोड़ा नोट किया है या करना है तो ये डायग्राम नोट कर सकते हैं. मैं यहाँ के बाद आगे चलूंगा, लेकिन जगह कम है, इसलिए इसके पीछे इसको फिर से शुरू करूंगा.
So I want to delete this part. If you are okay, you say I can do it now or wait. डायग्राम बना रहे हैं आप लोग? यस सर। सर एक क्वेश्चन भी था। बोलो। जैसे सर एआईएस को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, हमें जब चाहिए होता है, या इन केस ऑफ पायरेसी में पायरेट्स आ गए वो ऑफ करा हाँ। देंगे। तो एलआरआईटी का भी ऐसा कुछ है कि शिप से ऑफ हो सकता है, ताकि फिर डाटा कम्युनिकेशन बंद हो जाए हमारी फ्लैग स्टेट के साथ। ओके, हमने एआईएस बंद क्यों किया? अगर किया तो क्यों किया बंद? मान लो सर जहाज पे पायरेट्स आ गए, जहाज पे पायरेट्स आ गए, जहाज पे पायरेट्स उन्होंने आ गए तब हम एआईएस बंद करते हैं। उन्होंने करवा दिया आके, एआईएस बंद करवा दिया। यस सर। while passing HRA area. while passing HRA एरिया अगर बंद करना है तो मास्टर बंद करता है ना। सर मैं Yes, वो sir. केस नहीं कह रहा, सर वो हम गलत ऑन पॉइंट करके बोल रहा है। अच्छा ठीक है, हम okay. So in your case, in the example that you are giving, the pirates have already boarded the vessel, right? यस सर। Okay. तो ये पूरा सिस्टम जो है इसका काम खत्म हो चुका है। पायरेट्स जहाज में नहीं आए उसके लिए सब सिस्टम है। जब आ चुके हैं तो इसका काम खत्म है। ओके सर। जो होना था हो गया। जिससे बचाने के लिए हमने ये किया था, हमने मॉनिटरिंग की थी ना, ताकि जहाज में पायरेट्स ना आ पाए, हम ट्रैक करते रहे जहाज को किधर जा रही क्या जा रही। सर ये LRIT फिटेड किस में होता है? क्योंकि ये अलग से ऐसा डिवाइस कोई ऑन बोर्ड देखा नहीं सर, दो शिप्स के दोनों में सर LRIT देखा नहीं सर। ये GMDSS के अंदर ही फिटेड होता है क्या? तुम लोग पिटाई खाओगे। जब मैं बोलता हूँ तो कहाँ रहते हो? सेट सी में होता है सर। सैट सी में नहीं होता, सैट सी ही LRIT डिवाइस। व्हाट डिड आई से? LRIT इंडिपेंडेंटली कोई डिवाइस नहीं, आपने ये बताया। मैंने बताया कि कोई डिवाइस नहीं होता है। LRIT इज ऑल अबाउट पोजीशन रिपोर्टिंग। कुछ अगर आपका मोबाइल, मैंने एग्जांपल दिया था कि मोबाइल से ऑटोमेटिकली पोजीशन भेज सकते हैं, आईडी और टाइम भेज सकते हैं, तो मोबाइल, योर मोबाइल फोन इज LRIT। लेकिन हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मोस्ट ऑफ द टाइम GMDSS का इक्विपमेंट में जो SATC होता है उसमें फीचर होती है ऑटोमेटिक पोजीशन रिपोर्टिंग की, तो उसी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं और SATC हमारा LRIT हो जाता है। ध्यान से नहीं सुनते आप मेरी क्लास, या नहीं सुन रहे हो इसलिए पूछ रहे हो? सर अगर सेट सी बंद कर दिया तो फिर तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं LRIT वाला आगे। अच्छा ठीक है, मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। LRIT का क्या होगा अगर जहाज डूब गई? तब तो ये काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? जहाज तो डूब गई लेकिन LRIT काम नहीं कर रहा, क्या करूं? जवाब दो। जहाज डूब गई तो शायद मैं भी डूब जाऊंगा और क्या। तो जब डूब ही गई तो LRIT का मैं क्या करूंगा? वैसे ही जब पायरेट चढ़ ही गए तो इसका क्या फायदा? ये है उसके पहले का काम ना, पायरेट्स ना चढ़ पाए इसलिए तो मॉनिटर कर रहा हूं मैं। तो मॉनिटरिंग का काम तो उनके जहाज पे आने से पहले का काम है ना भाई। फ्लैग स्टेट सर चढ़ फ्लैग स्टेट क्या देखना चाहती? ये पायरेट जब चढ़ जाएंगे तो जहाज किधर लेके जा रहे हैं? यूरोप घूमने जा रहे हैं पायरेट्स, कि सोमालिया जा रहे हैं घूमने, कि बांग्लादेश जा रहे हैं, या कहाँ जा रहे हैं? ये देखने का काम है। फ्लैग स्टेट क्या करना चाहता है कि जब जहाज में चढ़ जाए पायरेट्स तो कहाँ लेके जा रहे हैं, सिर्फ ये देखना है उनका काम। नहीं समझे? मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर? एक सेकंड, पहले ये जवाब दे लेना।
इट इज लाइक मैं ग्लव्स क्यों पहनता हूं कुछ काम करने के पहले? व्हाई डू आई ग्लव्स पुट ऑन द ग्लव्स? ताकि हाथ गंदे ना हो। गंदे ना हो, चोट ना लगे, इसी के लिए ना। यस सर। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आपका हाथ कट गया है, चोट लग गई है, तो ग्लव्स का क्या करें सर? अब हाथ कट गई, अब ग्लव्स का क्या करें? समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? योर क्वेश्चन इज कि जहाज में पायरेट्स आ गए, चढ़ गए, तो चढ़ गए तो इसका काम खत्म हो गया ना भाई। अब तो इसका फायदा नहीं है, मॉनिटरिंग करनी थी। ज्यादा से ज्यादा जब चढ़ गए तो अब एसएससीएस काम आएगा, डिस्ट्रिक्ट से हम बता देंगे वहां पे कि भाई जहाज में चढ़ गए, हम सिटाडेल में भागेंगे, बंद हो जाएंगे वहां पे। तो एलआरआईटी बंद करो, चलाओ, तो उसके ऊपर नाचो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं वहां नीचे बंद हूँ सिटाडेल में। बट सर अगर चालू है तो हमारी, हाँ जी, यस सर, अगर चालू है एलआरआईटी हमारा तो उसके बाद तो हमारी पोजीशन तो फिर भी जा रही है ना उसके पास, वो हमें ट्रैक तो कर सकते हैं। चालू है तो ट्रैक कर रहे हैं। हमने एसएसएस दबा दिया होगा तभी सिटाडेल में भागे हैं। नोटिफिकेशन हो गई कि जहाज में पायरेट्स चढ़ गए हैं। अब उनको जो एक्शन लेना होगा, नेवी मोबिलाइज करना होगा, किसी फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करनी होगी, अपने काउंटर पार्ट किसी दूसरे कंट्री में बात करनी होगी कि हमारा जहाज आपके एरिया में था, वहां पे अटैक हुआ है, वहां के नेवी को मोबिलाइज करना, वो सब बात की दूसरे एक्शंस होंगे ना। तो अभी जो मैंने कहा कि ग्लव्स थी, हाथ कट गया, अब पूछ रहे ग्लव्स का क्या करें? अरे ये पूछो ना कि अब कट गया तो इसको पट्टी करें, हॉस्पिटल जाएं कि यहीं पे काम हो जाएगा, ये देखेंगे ना, ग्लव्स पूछेंगे। अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन और नॉट? हाँ ना, बोलोगे कुछ? यस सर। यस सर। तो कौन पूछ रहा था मेरे से कि पायरेट्स आ गए और बंद करवा दिया? कौन पूछ रहा था? प्रखर? मैं पूछ रहा था सर। अंकित। अंकित मलिक, ओके। तो क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, तुम ही दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे थे, वैसे टाइम हो गया, जल्दी से फटाफट पूछो। ऑफिशियली आई एम ब्रेकिंग द क्लास नाउ, बट यू मे कंटिन्यू। हो गया सर वो क्वेश्चन, मैं यही पूछ रहा था, अगर वो चढ़ गए उसके बाद भी हम यूज कर सकते हैं इसको, अगर ऑफ ना किया तो हम सिटाडेल में चले जाएंगे बाद में। ये तो भेज ही रहा है, तो मॉनिटर होएगा कि जहाज अब इधर से इधर को चल गई। बट सर अगर ऑफ करा दिया, एआईएस भी ऑफ हो गया ये भी, तो फिर हमारी पोजीशन कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दूसरे बहुत सारे मीन्स है, अगले क्लास में बात करेंगे। सिटाडेल में हम जाते हैं ना, सिटाडेल का कॉन्सेप्ट तो मालूम है? यस सर। यस सर। बहुत बार सिटाडेल में क्या कहते हैं, सिटाडेल में सैटेलाइट फोन होती है, तो वहां से भी बात हो सकती है बहुत बार। यस सर। ना लास्ट नोन पोजीशन अगर पता है, अगर जहाज डूबी है तो भी सर्च एंड रेस्क्यू होता है या नहीं? यस सर। तो जब डूब गई तो एलआरआईटी बंद हो गया होगा, एआईएस बंद हो गया होगा, सारी पोजीशन बंद हो गई होगी, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं कि लास्ट नोन पोजीशन यहाँ था, तो आसपास में ढूंढेंगे ना। आई एम सर। यस सर। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, एक्सपैंडिंग लाइक स्क्वायर सर्च करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्च पैटर्न्स आर देयर, तो उससे कोशिश करते हैं ना। तो जब लास्ट नोन पोजीशन ये थी, बंद करवा दिया, तो अब जब नेवी पहुंचेगी तो उस एरिया में आसपास में ढूंढेंगे ना जहाज कहाँ गया, दे विल टेक एक्शन। चलो बाय बाय, अगले क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे इस बात को। इधर उधर मत भटकाया करो मेरे को उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ के। चलो बाय बाय, ग्रेट डे। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, थैंक यू। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।